नमस्ते, वेलकम टू shailaji.com। आई एम शैला वसुनाथ। संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया में हर जगह मकर संक्रांति हो या पोंगल हो या बिहू हो मनाते हैं, राइट। दे सेलिब्रेट वेदर इट इज़ मकर संक्रांति और पोंगल और संक्रांति और बिहू, दे सेलिब्रेट ऑल ओवर इंडिया। तो ये किसका त्यौहार है? हुज फेस्टिवल इज़ दिस? ये तो किसानों का त्यौहार है, दैट इज़ इट्स अ फेस्टिवल फॉर फार्मर्स। नाउ क्यों ये किसानों का त्यौहार है? वाई इज़ इट? क्योंकि बैलों से संबंध है। इट इज़ रिलेटेड विद द काउज और द बुलक्स एंड ऑल दैट। सूर्य भगवान से संबंधित है। फसल मतलब क्रॉप्स, सो फसलों से संबंधित है। इट इज़ रिलेटेड विद क्रॉप्स। और हमको किसान लोग भोजन देते हैं, तो वे हमारे लिए मुख्य है। दे गिव अस फूड, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर farmers and for us too. So we too celebrate because we eat food. Why? Because of our farmers. So we should respect them, and they respect the cattle as well as the sun god and Lord Ganesha. So what it is, we will talk about it. तो ऐसे मतलब असम में बिहू होता है, फिर मकर संक्रांति उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन जगहों में मकर संक्रांति मनाते हैं। दे सेलिब्रेट एज मकर संक्रांति इन दीज प्लेसेस। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको संक्रांति बोलते हैं, दे से इट एज संक्रांति। और तमिलनाडु में इसको पोंगल बोलते हैं। सो इन तमिलनाडु दे कॉल इट एज पोंगल। सो today I will be telling the significance and importance of Pongal in Tamil Nadu. So why they celebrate and how many days they celebrate and what is the significance of it and all, we will talk about it today. Now when I talk about Pongal in Tamil Nadu, it is celebrated for 4 days. You might be wondering, oh my god, for 4 days? Yes, it's full of fun and enjoyment, and each day has got a significance for, so we will be knowing about it. What is the significance for each day? पोंगल का मतलब क्या है? पोंगल का मतलब है परिपूर्ण, complete. परिपूर्ण means complete. That means complete with wealth and grains. धान और धन से परिपूर्ण. So that is Pongal. Now the 4 days we would be celebrating Pongal. The first day it is Bhogi. When is it celebrated? The last day of Margali. They call it as Margali. That is the last day of that month. They celebrate it as Bhogi. And Bhogi is celebrated for Lord Indra, the god of rain. So Indra, it is celebrated for him. You know, farmers wish for what? Good rain so that the crops will grow well. So for that they pray for Lord Indra. First of all, घर की साफ़ सफाई करते हैं। दे क्लीन द हाउस कम्प्लीटली एंड पूरा, कभी कभी क्या करते हैं, वाइट वॉश भी करते हैं, घर को पूरा पेंट करते हैं। और जो पुरानी चीज़ें जो है ना, द ओल्ड आइटम्स, पुरानी या जो फेंकने योग्य हैं, विच आर टू थ्रो अवे, तो उन सब को इकट्ठा करते हैं। दे गैदर ऑल ऑफ देम, और उसको भोगी के दिन, ऑन द डे ऑफ भोगी, सुबह 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठकर उन सब को इकट्ठा करके उसको जलाते हैं। दैट मीन्स होली जैसे जलाते हैं उसको, लाइक होली दे बर्न ऑल दैट। तो उसको जलाकर उस समय ढोल बजाते हैं। और किस खुशी में बजाते हैं? फॉर व्हाट दे डू दैट? टू शो व्हाट? दैट इज़, पुरानी चीज़ों को जलाते हैं, इसका मतलब है मन में जो बुराई है उसको फेंकते हैं। Whatever bad is in our mind or in ourselves, that is removed, thrown out, और पूरी तरह से अच्छाई को लेते हैं। So they take in good and leave out bad. That is भोगी। तो एक दिन हो गया। तो दूसरा दिन, the second day Pongal is celebrated on the first day of the month of Thai. Okay, they call it as Thai month. So that day they say, in Tamil they say a saying called Thai Porandal Vali Porakkum. That means if the month Thai comes, आएगा तो
सब भलाई होगा, एवरीथिंग गुड हैपन्स, इट विल बी प्रॉस्परस। तो ऐसे उनकी मानना है, सो दैट वे दे कंसिडर इट। सो this Thai month they celebrate it, and the day marks the start of Uttarayan. Uttarayan is nothing but Uttar Parayan means he goes to the side of north. So that is Uttar Parayan, that is the sun goes to the 10th house of the zodiac sign Makara. Okay, the zodiac sign Makara, in English we call it as Capricorn, so that is why we call it as Uttarayan. Now on that day they get up early in the morning and क्या करते हैं उस दिन, तो उस दिन नया घड़ा खरीदते हैं, दे बाय अ earthen pot। तो मटका जो है ना, उसको घड़े को खरीद कर नया वाला उसको पूरा सजा कर उसके ऊपर मतलब पूरा पेंट करके क्या करते हैं, उसमें हल्दी लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, पूरा लगाकर उसको मतलब वो जो खेत है ना, फसलें हैं, तो वहाँ पर तो बीच में रखे, तो उसमें उस नए मटके में दूध उबालते हैं। सो उसके पहले क्या करते हैं, वो हल्दी का जो पौधा है उसको घड़े के मुंह पर लगाते हैं। That is, they take a turmeric plant and they tie it at the mouth of the pot, the earthen pot, that they tie it at the mouth of the earthen pot. That is very sacred, because in Tamil Nadu the turmeric, then sugarcane, jaggery, all these grains, that is the rice, all these are very much sacred and important, and all these grow very well in this particular winter season. So what they do is, as the milk boils, जैसे दूध उबलता है, तो नई फसलों से जो चावल है, नई फसलों से, that is from the harvest, from the crops, what rice they get, उसको उस दूध में डालते हैं. They take a cup of rice and they put that new rice, they put in that with jaggery, and they stir it with the sugarcane. Eek, sugarcane is eek, और गुड़ डालते हैं. Jaggery is गुड़ डालकर उसको एक डिश बनाते हैं, उससे एक डिश बनाते हैं जिसको शक्कर पोंगल और चक्कर पोंगल बोलते हैं. तो उस डिश को चक्कर पोंगल बोलते हैं. सो दिस वे पोंगल इज सेलिब्रेटेड दैट डे. पोंगल बनाने के बाद पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल ऐसे आवाज़ देते हैं. They shout out like that, and after that what do? They first they offer it to Surya Bhagwan, and they pray to him. Why? I told you before itself that he is the main source for their crops. So they pray to him. After praying to Surya Bhagwan, they pray to Lord Ganesha. तो उसके बाद लॉर्ड गणेशा की भी पूजा करते हैं, एंड उसके बाद अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं. आफ्टर दे फिनिश देयर प्रेयर्स, दे हैव देयर फूड. तो इस तरह दूसरे दिन मनाते हैं. अब तीसरा दिन, तो तीसरा दिन क्या करते हैं? तीसरा दिन वो माटू पोंगल होता है. माटू पोंगल मतलब द कैटल्स, काउस, बुलक्स, ऑक्स, इन सब की पूजा करते हैं. क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि दैट कैटल और द गाय, बैल सब क्या है, उनके लिए दोस्त जैसे हैं. क्योंकि वो वाई आर दे फ्रेंड्स? बिकॉज वो लोग बहुत मदद करते हैं. दे हेल्प देम इन वॉट? जोतने के लिए, जोतना मीन्स टू प्लाव, और बोने के लिए टू सो. तो जोतने और बोने के लिए किसान की मदद करते हैं. दे हेल्प द फार्मर्स इन प्लाविंग एंड सोइंग, इन बोथ दे डू. नाउ ये बात है. और गाय या बैल क्या देते हैं किसान को? बहुत मदद करते हैं. मतलब ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए यातायात. ट्रांसपोर्टेशन इज़ यातायात. सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो बैलगाड़ी यूज़ करते हैं ना, तो फॉर दैट दे यूज़. देन फर्टिलाइज़र्स, खाद के लिए. खाद मीन्स व्हाट? मैन्योर फर्टिलाइज़र्स. तो उसके लिए, खाद के लिए
उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उससे दूध से बने जितनी सारी चीज़ें हैं, सो वॉट एवर प्रोडक्ट्स आर मेड आउट ऑफ मिल्क, तो उसके लिए मदद करते हैं। उसके बाद फसल के लिए, तो जोतने और बोने के लिए। सो मेनी रीजंस आर देयर for them to celebrate it separately for the cows. So now on that day what do? उसके बाद नहाने के बाद उनको अच्छी तरह से नहलाकर, नहलाना मीन्स टू मेक देम हैव अ गुड बाथ, सो नहलाकर उसके बाद उसके सींगें जो है ना, सींगे मीन्स द हॉर्न्स, तो सींगों को अच्छी तरह से उस पर पेंट लगाते हैं और उसके बाद हल्दी लगाकर पूरा सजाएंगे, उसको पूरी तरह से सजाएंगे। दैट इज़ दे डेकोरेट द काउ वेल, उस पर रेशम के कपड़े लगाते हैं, फिर जो गुब्बारे हैं ना, बैलून्स, उसको लगाते हैं, फिर जो घुंघरू है ना, तो उसको, घुंघरू मीन्स द एंकलेट बेल्स है ना, तो एंकलेट में छोटे छोटे बेल्स होते हैं, तो उसको भी जो थोड़े बड़े होते हैं उसको भी लगाते हैं। जब वो गाय आगे जाता है ना तो आवाज़ निकलता है, सो व्हेन द काउ मूव्स अहेड यू कैन गेट द बेल साउंड, तो ऐसे भी करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो गायों की पूजा करते हैं, उनको फल और केले, मतलब उन गायों की पूजा करते हैं। दे डू द पूजा फॉर द काउस। नाउ इसकी एक विशेषता है, उस दिन जो युवक है, द यूथ, जो युवक हैं वो लोग अपने साहस को दिखाने के लिए, टू शो देयर करेज एंड ब्रेवरी, तो उनकी साहसी दिखाने के लिए वो लोग ये इन गायों को अपने वश में लाते हैं। दे ब्रिंग इट अंडर देयर कंट्रोल, सो दे ब्रिंग दिस काउज, दे ब्रिंग इट अंडर देयर कंट्रोल, तो उसके लिए उपहार जीतते हैं, दे विन। अगर वो अपना साहस दिखाते हैं तो उपहार जीतते हैं। तो इसको खेल है, उसको तमिल में जल्लीकट्टू बोलते हैं। तो हर साल इस माटू पोंगल के दिन वो जल्लीकट्टू करते हैं, जहाँ पर युवक अपना साहस दिखाते हैं। तो ये हो गया तीसरा दिन। तो चौथा दिन दैट इज़ अ फोर्थ डे। तो पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, अभी चौथा दिन। तो फोर्थ डे इसको कानुम पोंगल बोलते हैं। तो कानुम मतलब देखना, टू सी और टू विज़िट। तो क्या करते हैं, 3 दिन घर में मना लिया, तो 3 days दे सेलिब्रेटेड एट होम। अब क्या करते हैं, घर में बहुत वैराइटीज़ डिशेस, पकवान बना के उसको पैक करके ले जाते हैं बाहर, पूरा कैरेजेस में पूरा पैक करके कैरियर्स लेके जाते हैं। तो वहाँ कहाँ ले जाते हैं, तो वो लोग बीच जाते हैं या कहीं पार्क जाते हैं, ये मेले पे जाते हैं। सो दे गो लाइक दैट, दे गो विथ फुल फैमिली, 10 लोग 15 जो लोग पूरा इकट्ठा होके, 10-15 पीपल ऑल विल गैदर टुगेदर एंड पूरा, क्योंकि बाहर ख़रीदते नहीं, आजकल हम लोग ख़रीद के खाते हैं, लेकिन उस टाइम पे इवन नाउ इन विलेजेस पीपल गांव से क्या करते हैं, नगर की तरफ आते हैं, शहर की तरफ आते हैं, पूरा सामान लेके, मतलब खाने की सब पैकिंग करके वो यहाँ शहर की तरफ आते हैं किसान लोग। आजकल हम लोग भी वैसे जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से गांव से शहर आकर मेले देखने आते हैं, बीच देखने आते हैं। अगर उस राज्य में और या उस स्टेट में बीच है तो देखते हैं, नहीं तो जो भी देखने लायक जगह है, वॉट एवर टूरिस्ट स्पॉट्स आते हैं, उसको देखने के लिए अपने बच्चों और परिवार के सारे सदस्यों के साथ, ऑल मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के साथ घूमने निकलते हैं। दे गो आउट टू एक्सप्लोर आउटसाइड, सो दे एन्जॉय टिल इवनिंग, शाम तक पूरा मनोरंजन के साथ, पूरा मस्ती करके उसके बाद फिर अपना गांव निकलते हैं। देन अगेन दे गो बैक टू देयर विलेज। सो दिस वे दे सेलिब्रेट द 4 days of Pongal. So I have not told you one particular speciality about the Pongal, that is there is a thing called very important one. I thought I'll tell you at the end what it is. The whole month of Margali, that is it starts from December mid to January mid. So that full
1 month, 30 days, they will put rangoli, or we say some kind of shapes and forms with dots or just drawings outside their house. They put that. They do it with the rice flour. चावल का आटा जो है ना, तो उससे लगाते हैं, कुछ आकृतियाँ बनाते हैं. दे मेक सम फॉर्म्स एंड शेप्स, तो उसको बनाते हैं. उसको तमिल में कोलम बोलते हैं. सो दे डू दैट, एंड on that Pongal day and Bogi day and all, they make it so that it is like welcoming sun god. So to welcome the sun god, they do all that. So it is a wonderful thing, the full month, they do a lot of colors in it, and very nice it will look. So all this has been done, and not only that, they have a dance called Kummi, and they all gather together and do that dance. As I've done all this, in between, I think you have enjoyed all my photographs, you have enjoyed my videos, all that. I think you would have had a good time watching. As I was talking, you would have watched even that, right? Now we have almost come to the end of the program. I will show you now my puja, how I have done it, and how at home we would do the Pongal celebration, how we would do it at home. So that also I will just show you a small glimpse of it. Please watch it. तो फ्रेंड्स, क्या आपने देखा तो कैसे हम पोंगल तमिलनाडु में मनाते हैं, कैसा होता है. इस त्यौहार को हमने अपने स्कूल में मनाया था. सो दिस फेस्टिवल वी हैड सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल अपने टीचर्स के साथ. तो विथ माय टीचर्स वी हैड डन. तो इसका एक झलक हमने आपको दिखाया. अ ग्लिम्स ऑफ इट आई हैड शोन यू. एंड हमने कुम्मी भी किया था, वो डांस, दैट कुम्मी डांस विच इज़ दैट ऑल्सो वी हैव डन. And you would have seen how we have done the go puja, right? So that also for Matu Pongal, how we will do that go puja, that also I have shown you. You would have seen the pictures of it. I hope you have enjoyed it. साथ साथ आप हिंदी भी सीख लिए होंगे. So as I am talking, you would have learnt Hindi also. और इस तरह तो जो मौसम भी अच्छा है, और शूट करने के लिए भी बहुत मस्त है. आज शूटिंग करने के लिए मुझे अच्छा लग रहा है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर all my I mean the way we celebrated the festival, all that, to share it with you. I'm really happy. Please do like, share and subscribe my channel. Click the bell icon so that you get my latest notification. Until then, namaste. फिर मिलेंगे.